Hello students, now we will study the remaining portions of friction. In our previous lecture we have already studied about the basics of friction. What is the importance of friction? What is the role of friction? Where friction acts? तो basic जिनस सब आम पढ़ी सारी तो एबे आम पढ़ा तार जो रिमेनिंग पर्सन आम पढ़ा तो फास्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लॉज ऑफ फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन कौन 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 लॉ रोज तो 2000 जहाँ भी तुम स्क्रीन जहाँ भी जमी देखिपार दोज आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन तो फर्स्ट पॉइंट हूँ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शनल फोर्स जमी कहली फ्रिक्शन काम कौन इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट acts at the point of contact between two bodies and it opposes the relative motion between two bodies. Hence, the direction of frictional force is always opposite to the direction of motion. So this is the first point. Second point is the force of limiting friction depends upon the nature and state of polish of the surfaces in contact and acts tangentially to the interface between two surfaces. Suppose এটা ଗୋଟେ ব্লকটা রইলা এটা ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ରହିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଆକ୍ଟ ହେବ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ସର୍ଫେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହିଁ ଆକ୍ଟ ହେବ ଆଉ କେମିତି ଆକ୍ଟ ହେବ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଆକ୍ଟ ହେବ ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଏଲଙ୍ଗ ଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସର୍ଫେସେସ୍ ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ମେନଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବଡି ମୁଁ ରଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ଟେ ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ଟେ ରଖିଲା ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ୍ଟେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଆମକୁ ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ସର୍ଫେସ୍ ପରିକା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଥିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନଇଭିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନଇଭିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ରହିଲା ସେ ଅନଇଭିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଆମର ଏରାଇଜ୍ ହୁଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଯେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ଟା ସେତେ କମ୍ ହେବ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଆସୁଛି ସେ ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଯଦି ଯେତେ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ହେବ तो अधिका फ्रिक्शन जनरेट हम ओबियसली तो सहीटा लिखा है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट एंड इट एक्ट्स टैंजेंशियली टू द इंटरफेस माने ये जो सर्फेस को टैंजेंशियली एक्ट हम along the contact surface it will act tangentially. The magnitude of the limiting friction F is directly proportional to the magnitude of the normal reaction R between two surfaces in contact. ता माने तो थर्ड पॉइंट कौन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन R. तो नॉर्मल रिएक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. The third point is the magnitude of limiting friction F is directly proportional to normal reaction. Frictional force suppose এটা একটা ব্লক এটা ব্লক A এটা ব্লক B সো এই যে দুইটা ব্লক এপে সপোজ দুইটা ব্লক ভিতরে যে ফ্রিকশনটা আসিও ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য নর্মাল রিঅ্যাকশন সপোজ বি এটা বি ব্লকটা এটা এ ব্লকটা तो हाउ मच नॉर्मल रिएक्शन ए तो ए बॉडीटा बी बॉडी पर केते नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करछि बी बॉडी ए बॉडी पर केते नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करछि तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ये जो इंटरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन आसे से नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर आई एम टेकिंग द नॉर्मल रिएक्शन एट द सिंबल n बट इन हियर द नॉर्मल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल r. तो मुझे एन बोली नॉर्मल रिएक्शनटा को एन माध्यम देखा कि ये आर दे कि तार कन्फ्यूजन हबार ना तो नॉर्मल रिएक्शन तुम एन भी देखी पार कि आर भी देखी पार तो डिफरेंट बुक ये भेरी करे मुझे एन नौ आर देती किसी कन्फ्यूजन हबार नहीं. तो अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस. फोर्थ पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन between two surfaces is independent of the area and shape of the surfaces in contact so long as but condition kon as long as the normal reaction remains the same. तार माने जिनसटा इटा से कौन कहूँ सपोज यहाँ गोटे
ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟେ ତାପରେ ରଖିଛି। ତ ଏଠି ମୋର ପୁରା ପୁରା ସରଫେସଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟା, ଏଠି ଭାବ ଏ ବ୍ଲକଟା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ପୁରା ପୁରା ସରଫେସଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ର ପୁରା ସରଫେସଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଫୋର୍ଥ ଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ମାନେ ଲିମିଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ লিমিটিং ফ্রিকশন। তো লিমিটিং ফ্রিকশনটা কাହା ଉପରେ ডিপেন্ড କରିବ, ଏଫ୍ লিমিটিংଟା କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆର୍କୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଏଠି ବି ମୋର ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ ବି ଆସୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋର ଆର୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପୁରା ଏରିଆ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଠି ହୋଲ୍ ସରଫେସଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋର ସେମ୍ ଅଛି, ସେଟା ଏରିଆ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ ଦ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ରିମେନ୍ସ ସେମ୍। ଯଦି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭେରି କଲା ତାହେଲେ ମେ ବି ଏଟା ଏରିଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ଏଠି ମୋର ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଯଦି ସେତିକି ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଦ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିବ, ଏଠି ପୁରା ସରଫେସଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ସେମ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଫ୍ରମ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ର ଲ କ'ଣ କହିଲା, ତ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆର୍, ଦ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ସରଫେସେସ୍। ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଆମ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍। ତ ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍, ତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲିଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍। where mu କ'ଣ, mu ହେଉଛି କ'ଣ, mu is a proportionality constant, or we can say it is the coefficient of friction, coefficient of friction। ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ହେନ୍ସ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିପାରିବି, ହେନ୍ସ mu equal to F by R means coefficient of friction is the ratio of frictional force to the normal reaction। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜିନିଷଟା। it is the ratio of limiting friction to the normal reaction between two bodies and is generally denoted by the symbol mu। तो mu equal to F by R and also mu equal to tan phi। phi कौन, the angle of friction, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ जो ପଢ଼ା ହେବ ତ କହିବି ତୁମକୁ। तो F equal to mu R। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। ତ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ନେଲି, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଫେସଟା ରହିଛି, ଏ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟେ ରଖିଲି, ଛୋଟଟେ ବ୍ଲକଟେ। ଏ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଲି, ଏ ବ୍ଲକଟା ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅଛି, କାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଆସିଲା, ଏ ସରଫେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଆସିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବ୍ଲକ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ବ୍ଲକ ଉପରେ ତା ନିଜର ୱେଟ୍ଟା ଆକ୍ଟ ହେବ, ନିଜର ୱେଟ୍ଟା ଭର୍ଟିକାଲି ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ସପୋଜ୍ ଏ ବ୍ଲକର ଯଦି ମାସ୍ ଏମ୍ ରହିବ, ତାର ୱେଟ୍ଟା କେତେ ଆସିବ, ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି mg ତାର ଭର୍ଟିକାଲି ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ଲକଟା ମୋର ସରଫେସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ସରଫେସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ବ୍ଲକ ଉପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ର, ଭର୍ଟିକାଲ ଅପୱାର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ବ୍ଲକ ଉପରେ ନର୍ମାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଆର୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୱାର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ସପୋଜ୍ ଭାବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ପି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଗୋଟେ ପି ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଯଦି ପି ଫୋର୍ସ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ତାହେଲେ ବଡ଼ିର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ'ଣ ରହିବ, ବଡ଼ିର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ବଡ଼ିର ଯଦି ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଓ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବ, ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ, ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ, ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସରଫେସ୍ର। ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋର୍ସ। ତ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେ ବଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ସରଫେସ୍ ସହିତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅଛି, ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସରଫେସ୍ ନେଇ ଆସିବ। କେମିତି ଆକ୍ଟ ହେବ, ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଆକ୍ଟ ହେବ, ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଏମିତି ଆକ୍ଟ ହେବ along the contact surface, that is frictional force।
बुझा पड़ा ताहले तुम तुम ये देखिपार ये मोर दीटा कंटाक्ट फोर्स आसला गोटे है ये जो ब्लॉकटा रखी ब्लॉकटा को जेहेतु गोटे किसी फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई कली पी अमाउंट फोर्स अप्लाई कली द्वारा कि बॉडीटार मुवमेंट करने ट्राए कर राइट साइड डायरेक्शन को से अपोज करने मोर गोटे फ्रिक्शन आसला ये फ्रिक्शनल फोर्स आसला आउ गोटे आसला कौन नॉर्मल रिएक्शन गोटे आसला मोर नॉर्मल रिएक्शन किए अप्लाई कर ब्लॉक उपर अप्लाई कर सरफेस जेहेतु ब्लॉकटा सरफेस कंटाक्ट अच्छी से सरफेसटा ब्लॉक उपर नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन एक्ट कला ताहले आम जो देखिए यहाँ फ्रिक्शन एपटे फ्रिक्शनल फोर्सटा ये डायरेक्शन एक्ट हो नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कंटाक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर इज ऑल्सो ए कंटाक्ट फोर्स तो ये दुईटा फोर्स रिजल्टेंट कौन डायरेक्शन आस दिस इज द रिजल्टेंट कंटाक्ट फोर्स दिस इज एफ रिजल्टेंट कंटाक्ट फोर्स सो एबे आम जो देखिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन माने कौन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल क्या भितर ए रिजल्टेंट कंटाक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये दी जन परस्पर सहित जो एंगल फॉर्मेशन करते दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल थीटा से जिनसटा लिखा है जिनसटा द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल विथ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द angle with the resultant of force of limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction तामाने एटा हला मोर फ्रिक्शनल फोर्स ए डायरेक्शन पड़ुची तामाने एटा लिमिटिंग फ्रिक्शन एटा हला नॉर्मल रिएक्शन इनकर रिजल्टेंट कोनटा हला दिस इज द रिजल्टेंट सेटा जो कहूची द एंगल विथ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन माने लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो रिजल्टेंट माने एटा जेतिकी एंगल फॉर्मेशन करछि काय सहित विथ नॉर्मल रिएक्शन सहित माने नॉर्मल रिएक्शन सहित जेतिकी एंगल फॉर्मेशन करछि माने को एंगलटा ए एंगलटा माने जो थीटा एंगलटा ये जो थीटा सेटा होछि मोर एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो बुझा पड़ला तो तेणु एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आम कौन कही परिया दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट कंटाक्ट फोर्स माने एटा जोटा और वी कैन से द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल थीटा तो पिला माने जमी आम जानले जे थीटा हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन तमाने मुझे एक एमती ड्र करी तुम देखिपार तमाने कौन यहाँ है रिजल्टेंट कंटाक्ट फोर्स माने रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आईटा है नॉर्मल रिएक्शन ये जो एंगलटा है कौन मोर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आम जो देखा यहाँ गोटे कौन हम दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ताले ये मोर टैन थीटा केते आसियो ये जो टैन थीटा केते आसियो पी बाई बी माने परपेंडिकुलर अपन बेस सो परपेंडिकुलर केते आसियो परपेंडिकुलर होची बीसी अपन बेस केते आसिला ओबी सेटा लिखा है टैन थीटा केते मोर टैन थीटा आसिला बीसी बाई ओबी अगेन बीसी केते जेहेतु बीसीटा टिके तुम ये देखिपार जेहेतु बीसी यहाँ है बीसी मोर बीसी इज पैरेलल टू ओए यहाँ हूँ ओए को पैरेलल ताने बीसी जगह मैं कौन लिखिपारि ओए बोली लिखिपारि ओए बाई ओबी ओए रो वैल्यू कौन ओए इज फ्रिक्शनल फोर्स ओबी वैल्यू केते ओबी इज द रिजल्टेंट ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक हेंस वी कैन राइट टैन थीटा इक्वल टू एफ बाई आर बट ऑलरेडी आम जानीचे ऑलरेडी वी नो दैट एफ बाई आर माने केते म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी आम जानीचे म्यू इक्वल टू एफ बाई आर हेंस म्यू द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू टैन थीटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टैन थीटा so that is all about the angle of friction. Now we will study about angle of repose. What is angle of repose? So angle of repose जानिया पूर्व तुम किसी बेसिक जिनस कह चाहिए
सपोज देख सपोज गोटे ब्लॉकटा गोटे यहाँ गोटे सरफेसटा प्लेन सरफेसटा ये गोटे प्लेन सरफेसटा ये प्लेन सरफेस गोटे ब्लॉकटे रखी तो ये ब्लॉक उपरे कौन कौन फोर्स एक्ट हम फास्ट कौन है जमी देख कही यहाँ हूँ तार निजर जो मास किसी एम मास रहा ब्लॉक मास जो एम है तार निजर वेट माने एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हम आउ कौन एक्ट हम नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक उपर किए अप्लाई करियो जेहेतु सरफेस उपर ब्लॉकटा अच्छी इक्विलिब्रियम कंडीशन अच्छी इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो ताने सरफेस ब्लॉक उपर अप्लाई कौन करियो नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन सेटा को आर द्वारा देखो डिनोट करूँ हाँ कि नहीं एबे जदि भाव मु किसी फोर्स गोटे अप्लाई कली ए डायरेक्शन जदि गोटे पी अमाउंट फोर्स अप्लाई कली ताले कौन हम तार अपोजिट डायरेक्शन मोर फ्रिक्शनल फोर्स आसियो फ्रिक्शनल फोर्स किए ऑफर करियो सरफेस अप्लाई करियो ब्लॉक उपरे कौन पे अप्लाई कला जेहेतु मुझे किसी पी फोर्सटा अप्लाई कली ब्लॉक उपरे ब्लॉकटा ए डायरेक्शन मूव करने ट्राए करियो फ्रिक्शनल काम कौन है से दीटा सरफेस दीटा बॉडी भितर तार रिलेटिव मोशन को अपोज करियो आ कौटी से अप्लाई हम फ्रिक्शनटा कंटाक्ट सरफेस एलंग द टांजेंशियली सरफेस ब्लॉक उपर अप्लाई करियो मुझे को ये डिनोट कर तो एबे कौन हो जिनसटा भाव ये ब्लॉकटा गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस उपर अच्छे ब्लॉकटा को जब हॉरिजॉन्टल सरफेस उपर न रखी मुझे इनक्लाइन सरफेस उपर रखी भाव एमती टाइप्र किसी एमती टाइप्र भाव ब्लॉकटा को मुझे एमती टाइप रखदेली यहाँ सरफेसटा हॉरिजॉन्टल सरफेसटा एमती था एबे गोटे इनक्लाइन सरफेसटा ना एमती टाइप अब यार एंगल के भाव अल्फा एबे मो ब्लॉकटा को ये यार ऊपर रखिली एबे जो देखिया ई कंडीशन रो ब्लॉक ऊपर मोर कौन कौन फोर्स एक्ट हो कौन फोर्स पिले कौन फोर्स एक्ट हम आम देखिए ब्लॉक ऊपर कौन कौन फोर्स एक्ट हो फास्ट कथा तार निजर वेटा जदि बॉडीर मास ब्लॉकटा जो नहीं तार मास एम है तार निजर वेटा एक्ट हम तार निज ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन निजर वेट इज डिनोटेड बाय mg मास एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउ कौन हम तुम देखुच यहाँ इनक्लाइन सरफेसटा दिस इज द इनक्लाइन सरफेस ये इनक्लाइन सरफेस को जब परपेंडिकुलर करी मुझे जो लाइन ड्र करी मुझे जो लाइन ड्र कर सरफेस को इनक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर करी ताले कौन हम तुम देखुच से जो वेटा बॉडी जो वेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो वेटा लाइन सहित केते एंगल फॉर्मेशन कर एंगल फॉर्मेशन कर दैट एंगल इज नोन एज दैट एंगल वैल्यू ऑफ एंगल केते ये जो इंक्लिनेशन जति एंगल थी यहाँ से एंगलटा माने अल्फा तो एबे तुम जो देखियो यहाँ मोर वेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो गोटे लाइन ड्र कली इनक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर करके माने ये जो लाइनटा दिस इज द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर लाइन इनक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर करके लाइन ड्र कली आउ ये जो वेटा ये लाइन सहित किसी एंगल फॉर्मेशन कर भाव से ये जो एंगलटा केते हम जो इनक्लाइन प्लेन रो जो एंगल माने ये जो अल्फा एंगल एटा भी अल्फा हम ताहले आमे देखि पारुचे एमजी रो मुझे देखी वेट जो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट होची तार एपटे जो कंपोनेंट आसियो जेहेतु वेटा ये वर्टिकल लाइन सहित किसी एंगल फॉर्मेशन करछे माने अल्फा एंगल ताहले यार ये कंपोनेंट कौन आसियो mg cos अल्फा आउ एक परपेंडिकुलर है कि यार गोटे साइन कंपोनेंट आसियो माने कोनटा दिस इज साइन कंपोनेंट माने mg साइन अल्फा हाँ ना नहीं तमने तुम देखिपार एठी जेहेतु ये जो mg साइन अल्फा जो कंपोनेंट आसला वेट रो बर्तमान ये जो वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट होची तार दीटा कंपोनेंट ताको स्प्लिट कर देली तार गोटे कॉस कंपोनेंट आसला आ गोटे तार साइन कंपोनेंट आसला कॉस कंपोनेंट केते कॉस कंपोनेंट हला mg cos अल्फा सेटा एक्ट होची कोन एलोंग परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर काहे को इंक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट होची आउ तार साइन कंपोनेंटा कौन डायरेक्शन एक्ट होची जो इंक्लाइन सरफेस को पैरेलली एक्ट होची तो एबे जो ब्लॉकटा जो मूवमेंट करियो ये जो mg साइन अल्फा जोटा मोर एलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्ट होची तो एटा ही रेस्पोंसिबल ब्लॉक को तार डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करिया पे जेहेतु गोटे mg साइन अल्फा फोर्स एक्ट होची ब्लॉक ऊपर
जहाँद्वारा कि ब्लॉक टेंडेंसी रही कौन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इंक्लाइन सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव करने को टेंडेंसी रही से तार अपोजिट डायरेक्शन कौन हम ये डायरेक्शन मोर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ये डायरेक्शन मोर फ्रिक्शन एक्ट हम कारण बॉडीटा फ्रिक्शन काम कौन फ्रिक्शन से आसो पिक्चर को आसो जो गोटे बॉडीटा गोटे बॉडी कंटाक्ट आसो आउ जो कंटाक्ट आसला जो बॉडीटा स्लाइड करने को आराम कर टेंडेंसी आइदर स्लाइड करूँ कि टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग मोशन जो आसो से फ्रिक्शनटा आसो तो जेहेतु यार वेटटा आम देखले वेट को स्प्लिट कले वेट गोटे कस कंपोनेंट आसला गोटे साइन कंपोनेंटा कौन आसी साइन कंपोनेंटा एलोंग द इंक्लाइन सरफेस आसी साइन कंपोनेंट ही रेस्पॉन्सिबल वेट्र ये साइन कंपोनेंट ही रेस्पॉन्सिबल कौन ब्लॉक टेंडेंसी क्रिएट करियो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट पे से तार अपोजिट डायरेक्शन मोर एक्ट है कौन फ्रिक्शनल फोर्स तो सही टाइम पे ये देखी जो डायग्राम तुम देखिपो ये तो यहाँ हूँ मोर रहा कौन ये सरफेसटा यहाँ इंक्लाइन सरफेसटा या गोटे ब्लॉकटा रखाई यहाँ ब्लॉकटा तार निजर वेटटा कौन डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो तो यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन केते अछि अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गोटे मो लाइन ड्रॉ कले ये कौन इंक्लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर करके तो ये देखिए जो वेटटा ये जो परपेंडिकुलर इंक्लाइन सरफेस को जो लाइनटा मु ड्रॉ कली परपेंडिकुलर करके ता सहित केते एंगल फॉर्मेशन करियो एटा जेतिक एंगल ये मध्ये सेतिक एंगल ता माने कौन वेट्र यहाँ मैं देखिली को जब वेट एमजी को जब स्प्लिट करी तो यहाँ आसो तार कौन कॉस कंपोनेंट आसो ये कॉस कंपोनेंट को परपेंडिकुलर करके जो लाइन आउटे ड्रॉ करेंगे से कौन आसे तार साइन कंपोनेंट तो यहाँ है मोर एमजी कॉस अल्फा यहाँ रहा मोर एमजी साइन अल्फा ये एमजी साइन अल्फा बॉडीर टेंडेंसी कौन रही डायरेक्शन मूवमेंट करने बॉडी स्लाइड करने ट्राए कर तो स्लाइड न तार से जो मोशन जो आसो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोज करने मोर अपवर्ड इंक्लिनेशन प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन कौन एक्ट हम फ्रिक्शन कौन ना तो सहीटा ही ये शो कराई ताने एंगल ऑफ रिपोज माने कौन एंगल ऑफ रिपोज माने सपोज गोटे माने सपोज भाव यहाँ गोटे नेली प्लेन सरफेसटा नेली या गोटे गोटे ब्लॉकटा रखी एबे मु ये प्लेन सरफेस रो मु एंगलटा बढ़े बढ़े चली भाव एबे ये सरफेसटा को मुझे रखिदेली एबे ब्लॉकटा मध्य स्थिर अवस्था अच्छी एगेन आउरी तार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आउ थे बढ़ेदेली ब्लॉकटा मध्य देखिली कौन स्थिर अवस्था अच्छी एबे देखो मु आउ थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेली एबे कौन देखिली यही कंडीशन कौन हो बॉडीटा जस्ट स्लाइड करे को आराम कर तो ये टाइम रो जो एंगलटा थी तो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माने कौन सॉरी एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ रिपोज सो एंगल ऑफ रिपोज माने कौन इट इज द एंगल which an inclined plane makes with the horizontal so that a body placed over it just begins to slide on it माने एंगल ऑफ रिपोज माने एटा सही एंगल जो सपोज ये जो प्लेन सरफेस था प्लेन सरफेस आम धीरे धीरे तार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़े बढ़े गले तो जो एंगल गोटे बॉडीटा जस्ट स्लाइड करे को आराम करियो जस्ट स्लाइड करे को आराम करियो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माने इनिशियली भाव ये प्लेन सरफेसटा था बॉडीटा मोर स्टाटिक अवस्था अच्छी एबे मु तार ये प्लेन सरफेसटा को एमती इंक्लाइन करदेली तो एबे बॉडीटा स्थिर अवस्था रही मो बॉडीटा स्लाइड करनी भाव आउ टे बढ़ेदेली भाव ये कंडीशन नहीं भाव ये जगार कौन है मो बॉडीटा जस्ट स्लाइड करे को आराम कला तो सही टाइम जो एंगलटा इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट व्हिच ए बॉडी प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन सरफेस ए इंक्लाइन सरफेस पर जो बॉडीटा प्लेस्ड रही जो इट विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड से दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज तो सहीटा ही लिखाई यहाँ जिनसा तो देखिपार से जिनसा लिखाई एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल व्हिच एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल सो दैट ए बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड तो सेटा हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आउ जहाँ भी कहली जो जहाँ डिटेल बुझेली कौन एमजी साइन अल्फा जमी एक्ट हो एलोंग द प्लेन दिस इज एमजी कॉस अल्फा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये सब ऑलरेडी बुझे सारे आउ देख ये जिनसा को सेटा जो कहली यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एटा एमजी साइन अल्फा तो एमजी साइन अल्फा आम जो यार इक्विलिब्रियम जेहेतु बॉडीटा आम इक्विलिब्रियम अवस्था अच्छी ताने कौन एपटे जी साइन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट होती जो वेट्र तार साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट होती है एमजी साइन अल्फा इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एमजी कॉस अल्फा इक्वल टू द नॉर्मल डायरेक्शन आर तो एक जदि मु दुईटा को जब डिवाइड करदे एमजी टाइप आसो एमजी साइन अल्फा बाय एमजी कॉस अल्फा इक्वल टू एफ बाय आर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स बाय आर
एम जी कटिगला रहा के साइन आल्फा कस आल्फा के tan आल्फा इक्वल एफ बाई आर तो एफ बाई आर इक्वल टू म्यू कारण आम अलरेडी जानी म्यू इक्वल टू के एफ बाई आर भैल्यू के म्यू अलरेडी आम जानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय आर और वी कैन से म्यू इक्वल टू tan आल्फा म्यू इक्वल टू tan आल्फा हम ये जान तो जिते तो पिला आम जानले कौन म्यू इक्वल टू tan आल्फा किंतु या पूर्व जो पढ़ुले ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो पढ़ुले ये आम कौन देखी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आम कौन देखते म्यू इक्वल टू tan थीटा म्यूर भैल्यू क्या सहित सामान था tan थीटा हुए थीटा इज कौन थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो ये आम कौन जानले ये आम जानले जे म्यू इक्वल टू म्यूटा क्या सहित सामान tan आल्फा सहित आल्फाटा कौन मोर एंगल ऑफ रिपोज मैंने म्यू इक्वल टू tan आल्फा ऑलरेडी आम जानते कौन म्यू इक्वल टू tan थीटा हेन्स वी कैन से अल्फा इक्वल टू थीटा मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन आम ऑलरेडी जानी कौन म्यू इक्वल टू tan थीटा बोली जानी कि ये आमर जो आम ये डिराइव कले ये कौन पाइले म्यू इक्वल टू tan आल्फा तो लिखिपारे कौन tan थीटा इक्वल टू tan आल्फा तान रहा के थीटा इक्वल टू आल्फा से जिनसा ये लिखाई थीटा माने कौन थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन आल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज हेन्स द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड से जिनसा ही लिखाई सो बर्तमान आम जानिले व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज एगुड़ा सब आम कभर हो गला तो आज एति ये सब जहाँ भी जो वीडियोटा जो कम्प्लीटली देखियो बुझे को ट्राए करियो जदि किसी डाउट रहा नेक्स्ट क्लास में पचार तो आउ रिमेनिंग जिनसा नेक्स्ट क्लास पढ़ेगा तो आज एति थैंक यू तो चैनल को विजिट करो तो विजिट करो समस्ते सब्सक्राइब करो आउ जहाँ डाउट हो पचार नेक्स्ट क्लास को थैंक यू एवरीवन।